Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 2024 और 25 में उत्तर बंगाल में 735 करोड़ रुपए की लागत से 695 नई परियोजनाएं शुरू की गई। पहली बार कौशल विकास परीक्षण का शुभारंभ 40 करोड़ आवंटित। कल सिलीगुड़ी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीमा सुरक्षा पर अहम बयान की उम्मीद। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया विस्फोटक बयान। विपक्षी नेताओं को दी हाथ काटने, सिर मसलने की धमकी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल विकास विभाग ने 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में उत्तर बंगाल में 695 नई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी लागत 735 करोड़ रुपए होगी। मंत्री उदयन गुहा ने सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पहली बार कौशल विकास परीक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। 695টা স্কিম আমরা নিয়েছি সারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। এছাড়াও এবার আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন একটি কাজ আমাদের করতে বলেছেন, সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যেটা এর আগে কখনো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করেনি। সেটা টেকনিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের সাথে যৌথভাবে আর্থিক দায়টা আমাদের, ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত ওরা করবে। আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং দেব উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলোর বেকার যুবক যুবতীদের। তার ফলে তারা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য কাজ করতে পারবেন, বা যে কোম্পানিগুলোর সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হবে, যাদের মাধ্যমে এই ট্রেনিংটা হবে, তাদের সাথে আমাদের প্লেসমেন্টের ব্যাপারেও কথা হবে, যে যারা ট্রেনিং দেবে সাকসেসফুলি। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सिलीगुड़ी आ रहे हैं, जहां उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नाका चेकिंग भी चल रही है। वह सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो रानी डांगा स्थित सिलीगुड़ी फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में एसएसबी के महानिदेशक अमित मोहन प्रसाद को सम्मानित किया गया। अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल और डोकलाम मुद्दों पर क्या कुछ बयान देते हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया विस्फोटक बयान। मालदा जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को धमकी दी है। उन्होंने कहा, सीपीएम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ काटने और बीजेपी नेताओं के सिर मसलने, सिर झुकाने की बात कही। यह बयान कालियाचक के 1 नंबर ब्लॉक के एक पार्टी सभा के दौरान दिया गया, जहां बख्शी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है, फिर भी विपक्ष उन्हें गाली दे रहा है और बीजेपी राजनीति में गंदा खेल खेल रही है। इस बयान से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। হুঁশিয়ারি দেইনি, আমি যেটা অরিজিনাল কথা সেটা বলেছি। মানুষের উন্নয়ন লাগাতারভাবে প্রত্যেকটা মানুষ, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি সবাই এই উন্নয়নে সামিল হচ্ছে। প্রত্যেকটা এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন পাচ্ছেন, মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন পাচ্ছেন। অথচ আমরা লক্ষ্য করে দেখছি লাগাতারভাবে একদিকে সিপিএম কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, আর অন্যদিকে বিজেপি গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে অশান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আর্থিক সংকট তৈরি করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গটা ভাঙার চেষ্টা করছে, জাতপাতের নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, ভোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। আর এই মাছ ধরার সামগ্রী সাপ্লাই করছে সিপিএম এবং কংগ্রেস, আর মাথাটা যেখানে বিজেপি। সেখানে আমি আমার বক্তব্যটা বলেছি, আমি কারো বিরুদ্ধে বলিনি, কাউকে হুঁশিয়ারি দেওনি, আর হুঁশিয়ারি দেওয়ার লোকও আমরা না। বলছি আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আপনি বক্তব্য রাখার সময় বলছিলেন যে দলের মধ্যে কিছু বিভেদ রয়েছে। কি বিভেদ রয়েছে, কেন বিভেদ রয়েছে? না, দলের মধ্যে বিভেদ না। যদি বিভেদ থাকে
তাহলে পরিবারের মতো সেই বিভেদ মিটিয়ে নিয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে হবে। লোকসভায় বিপর্যয় কি বিভেদের কারণে? না, লোকসভা বিপর্যয় আমাদের যেটা হয়েছে আমরা স্বীকারই করে নিচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস, যে আমাদের আরও বেশি সংগঠিত থাকা দরকার ছিল, আরও বেশি মানুষের। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से की सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से सिलीगुड़ी और कोलकाता के बीच रात्रि ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने के लिए रात 10 बजे के बाद कोई ट्रेन या बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि आखिरी ट्रेन पदातिक एक्सप्रेस रात 8:40 पर चलती है। उन्होंने रेल मंत्री से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध किया और सांसद राजू बिष्टा व डॉक्टर जयंत रॉय से मदद की अपील की। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি রাত্রিকালীন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী থেকে কলকাতা থেকে পারতপক্ষে সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ আমাদের বাস, প্লেন বা ট্রেন এই সার্ভিসগুলো শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা অবধি রাত্রে 8:40 পরে সেই অর্থে থাকে না বললেই চলে। ফলে মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয়ের কাছে আমি একটি চিঠি লিখেছি, যেখানে এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হোক যে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি থেকে রাত্রি 10টার পরে কোনো ট্রেন সার্ভিস যেটা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এরকম পরিষেবা চালু করা যায় কিনা। তাহলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরগুলি নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবে এবং রাত্রিকালীন যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে সেটাও মিটবে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় এবং মাননীয় সাংসদ জয়ন্ত রায় মহাশয়েরও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। আশা করি উত্তরবঙ্গের মানুষের চাহিদা পূর্ণ করবার ক্ষেত্রে রেল মন্ত্রক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করবেন। अंबेडकर मामले को लेकर समीक भट्टाचार्य ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए अंबेडकर का संदर्भ दिया, जिसे विपक्ष ने अपमान करार दिया है। इसके बाद संसद में लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कोलकाता में भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा उनकी विरासत का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस ने अंबेडकर को नजरअंदाज और अपमानित किया है। আম্বেদকরের নাম নিয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ভারতের সংবিধানকে, ভারতের সংসদকে, ভারতের পরম্পরাকে, ভারতের জাতীয় জনসমাজকে যেভাবে কলঙ্কিত করছে, অপমানিত করছে, আজকে তার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। যে নেহেরু পরিবার, যে গান্ধী পরিবার দিনের পর দিন বাবা সাহেবের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, বাবা সাহেবকে হারিয়েছেন, বাবা সাহেবকে রাজনীতির পরিসর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, যেভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে করেছিল, আজকে একই হচ্ছে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে। একটি বক্তৃতার সামান্য কয়েকটি শব্দকে তুলে নিয়ে যারা আজকে কাজ করছেন, তারা ভারতের সংবিধানের, ভারতের সংসদের যে গৌরবময় অতীত আছে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের। अलीपुरद्वार में गोलीकांड पर शुरू हुई राजनीति। अलीपुरद्वार में गोलीकांड की घटना के 3 दिन बाद भी 2 अपराधी फरार है। पूर्व तृणमूल विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने दावा किया कि हिंदू जागरण मंच बाहरी हथियारबंद उपद्रवियों को राज्य में ला रहा है। इस पर हिंदू जागरण मंच ने विरोध जताया और कहा कि यह एक गैर राजनीतिक मंच है जो हिंदू समाज के कल्याण के लिए काम करता है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस दोनों बाइक सवार अपराधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। বলি ওনার হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বিজেপি দুটো যে একদম সাংগঠনিকভাবে আলাদা এই সম্পর্কে ওনার কোনো ধারণা নেই। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ হিন্দু সমাজের স্বার্থে কাজ করে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটা অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, কাজেই ওনার এই ধারণাটাই নেই। যেহেতু উনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সেই কারণেই উনি সরাসরি বিজেপি এবং হিন্দু জাগরণ একসাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়ত বলি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ হিন্দু সমাজের উন্নতির কল্পে কাজ করে, কিন্তু সমাজে কোনো রকমভাবে কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে তারা কোনো দিন যুক্ত হয় না।
এবং তারা আর্মস অ্যামুনেশন কোনোদিনও ঢুকিয়ে কোনো জায়গার শান্তি বিঘ্নিত করে না, বরং আলিপুরদুয়ারে বর্তমানে আমাদের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের যারা কার্যকর্তা সদস্য আছে তাদেরই প্রতি পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করছেন এই রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দরা, যার জন্য সেখানে আমাদের হিন্দু স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা যেহেতু सिलीगुड़ी रानीडंगा कालाराम हाई स्कूल प्रांगण में टावर हटाने की मांग को लेकर महकमा शासक को दिया गया ज्ञापन। रानीडंगा कालाराम हाई स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक निजी कंपनी का टावर स्थापित करने को लेकर विद्यालय में प्रबंधन पर आरोप लगाया गया है। अब विद्यालय के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने इस घटना का विरोध जताया और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने महकमा शासक से मुलाकात कर टावर हटाने की मांग की। अभिभावक का कहना है कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान टावर कैसे लगाए जा सकते हैं, जबकि प्रधान अध्यापक ने कहा कि इससे स्कूल के विकास के लिए धन जुटाया जाएगा। जो टावर बैठा है वहाँ पढ़ने लिखने के लिए वहाँ वापसता हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ये टावर हटा दीजिए, वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा होगा पढ़ने लिखने में, चाहे हर एथी में। आज टावर बैठा है, कल किसी और चीज का एथी करेगा तो कैसा लगेगा। सबको तो बच्चा, कोई तो सब लोग तो यहाँ पर गरीब है अमीर है सब है ना, तो गरीब लोग का बच्चा कहाँ जाएगा, वहाँ पर तो सरकारी में पढ़ेगा। मेरा भी बेटी 6 में पढ़ती है कालाराम में, तो वो तो हटाना पड़ेगा ना। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेंटेड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future.
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारत नेपाल सीमा इलाके में देसी पिस्तौल के साथ एक युवक की गिरफ्तारी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। खोड़ीबारी के पानीटंकी इलाके में देसी पिस्तौल के साथ एक युवक को पकड़ा गया था। मोहम्मद मिराज की गिरफ्तारी के बाद खोड़ीबारी पुलिस ने एक और आरोपी स्वपन बर्मन को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 4 दिसंबर को मिराज के पकड़े जाने के बाद की गई है, जब पुलिस ने स्वपन का नाम उजागर किया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि पिस्तौल कहां से आई और आरोपी सिलीगुड़ी को कोर्ट में पेश किए गए। भूसे के ट्रक की आड़ में मवेशियों की तस्करी, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी संलग्न तस्करी की जा रही 20 मवेशियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनजेपी थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर फुलबाड़ी से सटे गठमा बाड़ी इलाके में छापेमारी कर मवेशियों से लदी लॉरी को पकड़ा। भूसी के बोरियों के आड़ में मवेशी की तस्करी की जा रही थी। मालूम हो कि गायों की तस्करी बिहार से असम की ओर की जा रही थी। इस घटना से पुलिस ने कार के चालक सह चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। क्रिसमस से पहले सिलीगुड़ी के सड़कों पर क्रिसमस रैली निकली। सिलीगुड़ी में क्रिसमस का दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस बीच SUCF नामक संगठन ने क्रिसमस रैली के साथ प्री क्रिसमस मनाया। इस दिन उद्यमियों ने राजधानी सिलीगुड़ी के कई सड़कों में स्थित सर्विस सेंटर से रंगारंग क्रिसमस रैली का आयोजन किया। रैली शहर की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर समाप्त हुई। मूल रूप से इस रैली के माध्यम से लोगों को प्रभु यीशु के सुसमाचार और प्रभु यीशु के प्रकट होने के साथ साथ उनके प्रेम के बारे में भी जानकारी दी जाती है। है क्रिसमस के बारे में थोड़ा समाज में थोड़ा संदेश देने के लिए कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं शांति लाने के लिए और एक दूसरों के बीच में भाईचारा लाने के लिए। इसीलिए जो हम क्रिश्चियन हैं इसीलिए काम करते हैं। साथ साथ हम चाहते हैं ये संदेश सबों को पहुंचाने ताकि हम सभी प्रेम में एक दूसरों के साथ मिलजुल कर जी सकें। आज हम इधर ही से सेवा केंद्र प्रधान नगर से शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जितना संख्या आएगा हम देखकर विनसमुड़ तक जाने का हमारा उद्देश्य है। देखा जाएगा कैसे सामने अभी जरूर क्रिसमस है। हमारा संदेश इतना ही है, हम सब मिलकर भाईचारा में भाई बहन होकर ईश्वर की एक ही संतान समझकर हम जी सकें सबों के साथ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, वी ऑल शुड लिव इन हार्मनी एंड वी ऑल शुड लिव इन पीस। एंड जैसे प्रभु यीशु इस दुनिया में सबों की उन्नति के लिए आए, प्रेम में आए, इसलिए हम भी एक दूसरे से प्रेम करके जिए। मैं फादर फिलिक्स पिंटो हूँ, बागडोगरा कैथलिक डायसिस का पुरोहित हूँ। नशीले पदार्थों के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। खोड़ीबाड़ी पानीटंकी चौकी की पुलिस ने गौर सिंह फार्म में छापेमारी कर 3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 1,74,000 रुपए बरामद किया और घटना में एक युवक दुलाल बर्मन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और अब जांच जारी है। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली इलाके से एक मोटर बाइक चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली इलाके से कल एक मोटर बाइक चोरी हो गई थी। इसके बाद सिलीगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस
ट्रैफिक पुलिस ने आज सुबह सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में बाइक को पकड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने 2 युवकों को बाइक पर फराटा भरते देखा और जब कागजात की मांग की तो दोनों कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद बाइक जब्त कर ली गई। बाद में पता चला कि यह वही चोरी की बाइक थी। पुलिस ने बाइक को सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया है। अब मालिक को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जलपाईगुड़ी में एक भयावह सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। धूपगुड़ी के सिनेमा हॉल मोड़ इलाके में एक छोटी कार अनियंत्रित होकर लैंप पोस्ट से टकरा गई और पलट गई। मृतक का नाम हृदय सूत्रधर था। वह एक कैटरिंग कंपनी से कर्मचारी के तौर पर काम कर शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार डिवाइडर और लैंप पोस्ट से टकरा गया, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। चावल की बोरी की आड़ में हो रही थी कफ सिरप की तस्करी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एक विशेष पुलिस की टीम को गुरुवार को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिलने के बाद जलपाईगुड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर झारखंड राज्य के रांची से कुचबिहार जा रहे चावल की बोरियों से भरे एक ट्रक को रोका। ट्रक से चावल की बोरियां उतारने पर 80 पेटी कफ सिरप निकला, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना में पुलिस ने चावल की बोरियों ले जा रही ट्रक के चालक उत्तर प्रदेश के निवासी बाशिंदा मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।